Hello everyone, this is the another video for the Java programming. Specifically in this video, I am going to tell you how we can input different data types variable in Java programming using scanner class. So main focus on this in this video is on scanner class for inputting data. So there are different methods of inputting data in Java. First is the Java user input using the scanner class. There is some more another methods which we will discuss into later sessions. We can use reader class for inputting the data. We can use input stream reader class. We can use file reader class and buffer reader class also for inputting the data. So there is a lot of different methods by which we can input data in our Java program. But in this session, we are going to cover how we can input different data types using scanner class. Scanner is a class of Java. So first of all, we have to discuss something about the data types of Java, which is another important part, because until unless we are not aware about different data types in Java, we cannot understand how we have to input. So अब आप लोगों को ये समझ आई क्या होगा different data types क्या होता है? Data types means different type का data जो हमारी life में होता है उसको represent करने के लिए different data types होते हैं हर programming language के अंदर. ऐसे ही Java के अंदर भी हैं. Java के अंदर दो टाइप के प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स मिलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उनमें होता है बूलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, तो आपको पता है कि उसके अंदर चार ही बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, दैट इज इंटीजर, कैर, फ्लोट एंड डबल. बट इसमें थोड़े ज्यादा हैं. बूलियन मींस जावा कंसिस्ट ऑफ मोर. बूलियन, कैर, बाइट, short, these are actually not available in C and C++. So non-primitive data type means user defined data type. Primitive data type which is by default exist in our software or our JDK. Non-primitive means which we derive, means user derived data types भी हम इनको कह सकते हैं. इसके अंदर आपके पास आता है जावा के अंदर classes, interfaces and arrays. So in this class, I am going to discuss only the primitive data type. In later session, we will discuss the non-primitive data types also. So Java primitive data types are, in Java language, primitive data types are the building block of the data manipulation. These are the most basic data types available in Java language. So 8 are there: Boolean, byte, char, short, int, long, float, and double. These all are the primitive data type. So if we want to draw a tree diagram for different data types in Java, then we can divide Java data types into primitive and non-primitive. Primitive means Boolean. Boolean is independently one. Numeric. In numeric, it is a character data type or integral data type. Character is also be represented in the numeral form in Java. That is char data types. Char. This is the syntax of character data type. Integral is integer. इंटीजर में आपके पास होते हैं चार: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. ये सारे इंटीजर होते हैं. इट मींस दे कैन स्टोर होल नंबर्स ओनली. फ्लोटिंग पॉइंट्स आर टू: फ्लोट एंड डबल. फ्लोट इज सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड डबल इज डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सो हमारे पास ये टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हमने डिस्कस कर ही लिया. स्ट्रिंग होते हैं, एरेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं. ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम दीज प्रिमिटिव डेटा टाइप. So these are the range of the different data types. Boolean, it can have a value of true or false. Default value is false. Its size is of 1 bit, means it can store either 0 or 1. 0 is false and 1 is true. So if you want to declare a variable, you can declare as Boolean 1 equals to true or false. Char is always its default value is this. It takes 2 bytes in memory. It means 16-bit Unicode. In Java case, this Unicode is very important. We will discuss it in the same session later. And its range is /u 00002
/u FFFF. Highest value is this. This actually highest value is 65,555. Means total of these two. So that will be the highest range of our character data type. Byte is by default value is 0. It takes 1 byte in size. Its minimum value is 128, minus 128, and maximum value is 128. For example, we can means that is the only method to create a variable. Either you have to initialize it, or you can just simply declare it. Short, 2 bytes, and size initial value range is this, minus 32768 to 32767. In Java, integer types is of 4 byte, and its range is very high. It's near about the value which we can store in float. Long, then float and double. Float can have 4 bytes, and double can have 8 bytes. Means default byte size, default memory size. So, and its range is very high, so I had not written here. So why uses 2 byte in Java, and what is the /u 0000? Actually, in maximum programming language, char takes only 1 byte, but in Java, it is a special character, a special data type, having a 2 bytes. But why Java is using 2 bytes for char? It is because Java uses Unicode system, not ASCII code. As we know, ASCII code system is there to store different or to interpret the different syntax or symbols or alphabets or tokens, you can say, digits in our computer system. But in Java, we use Unicode system. Why we use it, we will also discuss this. The /u 0000 is the lowest range of the Unicode system. Unicode is the universal international standard coded character encoding that is capable of representing most of the words written language. So जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं अवेलेबल, उन सब को रिप्रेजेंट कर सकता है यूनिकोड. क्यों हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? जावा यूनिकोड सिस्टम यूज करता है. हमें यूनिकोड से पहले बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते थे, जैसे ASCII था, आस्काई कोड, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने दिया था. ISO के कोडिंग सिस्टम होता था, जो कि वेस्टर्न यूरोप की लैंग्वेज में फॉलो किया जाता था. KOI 8 होता था, जो रशिया फॉलो करता था. KB 18030 एंड बिग 5 था, जो चाइनीज यूज करते थे. लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने जावा यूज करनी शुरू करी, जावा हमारी वेब एप्लीकेशन पे भी यूज होती है. हमें पता है कि वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपलेट्स बना सकते हैं. तो अब क्या होगा, अगर सपोज करो कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और आस्काई कोड यूज करके एक एक एपलेट बना भी लेती हूँ, तो क्या चाइनीज उसको यूज कर पाएंगे? क्या यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन पीपल उसको यूज कर पाएंगे? क्या उसको रशियन यूज कर पाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने जो कोडिंग करी है वो आस्काई पे यूज किया है, और उनका जो कोडिंग सिस्टम है वो कुछ और ही है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास रेज होती थी. A particular code value correspond to the different letters in the various languages standard. So अगर मैं कहूँ कि 65 आस्काई वैल्यू होती है, कैपिटल A को रिप्रेजेंट करती है, तो जरूरी नहीं है कि वो 65 8 के अंदर मींस रशियन स्टैंडर्ड के अंदर वो कैपिटल A की ही वैल्यू हो. तो इसमें मिस इंटरप्रेट हो जाता था. इसलिए यूनिकोड का जनरेशन हुआ. द एनकोडिंग फॉर लैंग्वेजेस विद लार्ज कैरेक्टर सेट्स हैव वेरिएबल लेंथ. सम कॉमन कैरेक्टर्स आर इनकोडेड एज सिंगल बाइट्स, अदर रिक्वायर 2 और मोर बाइट्स. जैसे चाइनीज एंड रशियन लैंग्वेजेस होती हैं, जापानीज लैंग्वेजेस होती हैं, वो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस होती हैं, और एक सिंबल को स्टोर करने के लिए हमारे को एक से ज्यादा कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब 1 बाइट से ज्यादा का डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है. होता है. तो क्या होता था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट साइज ऑफ डेटा बाइट भी होता, डेटा बाइट डेटा टाइप का डिफरेंट साइज होता था. जैसे कैर C और C++ में हम 1 बाइट यूज करते थे, लेकिन अब वो आस्काई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता था. लेकिन रशिया में जैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, चाइनीज एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, तो इट मे पॉसिबल जो कैपिटल A हमारा 65 कंसीडर किया जाता है आस्काई में, वो कुछ और वैल्यू हो रशियन और चाइनीज के अंदर. इसलिए हम एक यूनिक
यूनिवर्सल फॉर्मेट यूज नहीं कर पा रहे थे, तो एक यूनिकोड सिस्टम को जनरेट किया गया। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इन प्रॉब्लम्स का? न्यू लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड नेम्ड एज यूनिकोड, एंड यूनिकोड होल्ड्स 2 bytes, so Java also uses the 2 byte for characters. Its lowest value is /u0000 and highest value is /u FFFF. So this was the reason यूनिकोड जनरेट किया हमने। सो इस पूरे सेशन के अंदर मैं एक प्रोग्राम बनाने वाली हूँ जिसके अंदर हम 2 नंबर को इनपुट कराएंगे और उन नंबर को सम प्रिंट कराएंगे। यही बेसिक प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इनपुट कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे फाइल रीडर के थ्रू इनपुट करा सकते हैं, सिंपल रीडर के थ्रू इनपुट करा सकते हैं, इनपुट रीडर के थ्रू इनपुट करा सकते हैं, और स्कैनर के थ्रू भी इनपुट करा सकते हैं। तो स्कैनर जो होता है वो इजीएस्ट वे होता है टू इनपुट एनी डेटा इनटू जावा। तो स्कैनर एक क्लास है जो कि हमारे जावा यूटिल पैकेज में फाउंड होती है। तो जावा क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक जावा का पैकेज जो यूटिल पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं, प्रेजेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल को एक्सेप्ट कराने के लिए नेक्स्ट इंट यूज किया जाता है, ऐसे ही हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी स्कैनर क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। लाइक दिस, अगर आप ये देख रहे हो, इसके अंदर पूरी टेबल दी हुई है। हमारे पास जितने डेटा टाइप हैं उन सब डेटा टाइप्स को इनपुट कराने के लिए डिफरेंट फंक्शंस दिए हैं जो कि स्कैनर क्लास के फंक्शन है। तो नेक्स्ट बुलियन इज फॉर रीडिंग बुलियन वैल्यू, नेक्स्ट बाइट इज फॉर रीडिंग बाइट वैल्यू, नेक्स्ट डबल इज फॉर रीडिंग डबल वैल्यू, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लाइन इज फॉर रीडिंग द string value. There is one more thing here, char, सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए यहाँ पे दूसरा मेथड है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपके पास या नेक्स्ट सेशन में जब भी हमारे पास कुछ इनपुट कराना होगा कैरेक्टर को, उसके साथ में मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। तो ये एक प्रोग्राम मैंने लिख दिया, import java.util.scanner। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे स्कैनर से इनपुट कराना है। स्कैनर एक क्लास होती है जो कि जावा के यूटिल पैकेज में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा import java.util.scanner। उसके बाद हमने कहा पब्लिक क्लास सम, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ हमें कैसे बनाना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने कर लिया है। इंटीजर ए बी सी 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसका सिंटेक्स ये होता है, scanner is a class name that it is an object, we have to declare a memory to using new मेथड के थ्रू आप एक नई मेमोरी इस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट करोगे। स्कैनर दिस इज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक पैरामीटर पास करा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन एक मेरी इनपुट स्ट्रीम होती है, उसका वो ऑब्जेक्ट मैं पास करा रही हूँ अपनी स्कैनर क्लास में। तो ये स्कैनर क्लास जो है वो इन स्ट्रीम को यूज करेगी। अब हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए नंबर, ये सिंपल मैसेज है, हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया, मैसेज डिस्प्ले कराया, और उसके बाद हमने इसको इनपुट लगा दिया a इक्वल्स टू इन डॉट इन, मतलब ये इन स्ट्रीम थी हमारी जो हमने इनपुट कराने के लिए सिस्टम डॉट इन जो क्लास होती है, सिस्टम क्लास की इनपुट स्ट्रीम जो होती है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। और नेक्स्ट इंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नेक्स्ट इंट एक फंक्शन होता है जो कि इंटीजर वैल्यू को रीड कर सकता है, और क्योंकि मेरा a जो है वो इंटीजर टाइप का है तो मैं इसमें a इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट करूंगी। उसके बाद दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे और उसको हम नेक्स्ट इंट करेंगे, फिर हम इसको सम कराएंगे और हम फिर उसके बाद इसको सिंपली डिस्प्ले करा देंगे। अब अगर हम सोचें कि ये क्या चीज है, सारा इसको हम बाइफरकेट करें तो हमारे पास आता है इंपोर्ट। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ जावा फॉर इंपोर्टिंग एनी पैकेज। जैसे आप सी या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के अंदर हैश इंक्लूड यूज करते थे, ऐसे ही हमारे पास जावा के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है टू इंपोर्ट द ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पैकेजेस एज वेल एज सब पैकेजेस एंड द क्लास। सो जावा जो होता है वो एक पैकेज का नाम होता है जो कि प्री डिफाइंड पैकेज है, और ये यूटिल जो है उसका सब पैकेज होता है जो कि जावा फोल्डर के अंदर ही डिक्लेयर किया हुआ होता है, यूटिल पैकेज। और यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास डिक्लेयर की हुई होती है जिसका नाम होता है स्कैनर क्लास। सो हम इस पूरे के पूरे इस पूरे इंपोर्ट को ऐसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं इसी प्रोग्राम को अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी और आपको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। यस स्टूडेंट्स, मैंने CMD में आके यहाँ पे अपना पाथ सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें नोटपैड यूज करना है।
नोटपैड में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। import first statement is java dot util dot scanner. This is my class. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, import हमारा एक कमांड है, स्टेटमेंट है जावा का। जावा एक हमारा पैकेज का नाम है, util मेरा सब पैकेज का नाम है, और जो स्कैनर है वो मेरी क्लास है। नाउ आई हैव टू डिक्लेयर ए पब्लिक क्लास, पब्लिक जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, कैमल केसिंग। दिस इज कैमल केसिंग। जैसे सम ऑफ टू नंबर्स हम करना चाहते हैं, ये मेरी क्लास का नाम है, तो एस कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल, टू का टी कैपिटल, नंबर का एन कैपिटल। नाउ so first of all I have to declare two variable, number underscore 1 आपको केस जरूर याद रखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है हमारा जावा। हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हम system डॉट इन यूज करेंगे। आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको यूज करना है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। आप इसको कुछ भी ऐसे यूज करना चाहें तो नहीं कर पाओगे। जहां पे कैपिटल आपने लिया है वहां पे कैपिटल ही लोगे, या जहां पे कैपिटल अलाउड है वहां पे कैपिटल ही लेना है हमने। मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर एनी नंबर। अब मुझे इनपुट कराना है, मेरे पास है नंबर अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू, इन मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट INT, ये मैं इनपुट कराऊंगी। ऐसे ही हमारे को दोनों वेरिएबल इनपुट कराने हैं, तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको सिंपल नंबर 2 बोल देते हैं। नेक्स्ट लाइन, सम इक्वल्स टू नंबर अंडरस्कोर 1 प्लस अंडरस्कोर 2। जब हमारे पास सब कुछ इनपुट हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए प्रोग्राम को मैं इसमें मैसेजिंग करूंगी। मैसेजिंग के साथ मैं अपना आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगी। नंबर अंडरस्कोर 1 That's all. Now how you have to save? File save as। पहले मैं इसका ऐसा करती हूँ, इसका एक ये कॉपी कर लेती हूँ ताकि इसमें डिफरेंस ना आए, क्योंकि जब आप ये कैमल केसिंग करते हैं तो आपको भूल जाता है कि आपको कहाँ पे आपने कैपिटल दिया है, कहाँ पे स्मॉल दिया है। तो उसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इस क्लास का जो नाम है इसको कॉपी कर लो। ये मैंने सेव कर दिया है। अब जावा में आते हैं। इफ यू वांट टू सी, आप देख सकते हो ये मेरा प्रोग्राम है, जावा सम ऑफ टू नंबर्स डॉट जावा। कंपाइल कर लेते हैं, कुछ एरर आ सकती हैं, वो हम देखते हैं क्या एरर आ सकती हैं। सम ऑफ आ गया मेरे पास एरर। एरर आपको कैसे फाइंड करनी है, जिसके नीचे कैरेट साइन दिया होता है उसमें एरर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहीं आपको नजर आ जाएगा कि स्ट्रिंग का जी मैंने नहीं दिया,
तो मैं अपने नोटपैड में जाऊंगी, पहले मैं इसको ठीक करूंगी। जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगी तब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ही आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो वैसे ही आप इसको सेव भी करोगे, अदरवाइज तो ये प्रोग्राम आपका पुराना ही लेगा। सो जावा सी अगेन, मेरा प्रोग्राम रन हो गया है सक्सेसफुली बिकॉज यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ, देयर इज नो एरर नाउ। अब आप एग्जीक्यूट करो यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। तो जो JNI की प्रॉब्लम मेरे पास आ रही थी आप उसको सॉल्व कर लेना, मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जावा सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल सम ऑफ डॉट जावा, then Java sum of Java. So it is asking a number from me, दूसरा नंबर sum. So गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था मुझे, तो मैं थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए। यहाँ पे आप नंबर 1 दोबारा से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। Java C sum of Java sum of C. Number 1 is 34 and plus number 2 is this. If you don't want this message, then you can remove. So I will say I don't want to display this. Number 1 plus मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसके लिए मैं वैल्यू के लिए ये लगा रही हूँ। ये देखो ऐसे आ जाएगा आंसर। अगर आप सिंपल इसको सम को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो मैसेज बदल सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप कह दो system.out.println the sum of two numbers equals to plus sum। आप ऐसे भी सिंपल मैसेज दे सकते हो, मैं दोनों दे देती हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैंने क्यों किया ये। तो एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं। आई विल से क्लियर स्क्रीन CLS Java C compile Java, I have to enter number, so this is the output जिसमें हमें नंबर 1 एंड नंबर 2 को ऐड करके नंबर फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। या फिर आप ये मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप इसमें क्या कराना चाहते हो। Yes student, this is my second program in which we had understood how we can input data। तो इनपुट डेटा कराने के लिए हमने स्कैनर क्लास यूज की है। स्कैनर क्लास में हमने नेक्स्ट इन फंक्शन यूज किया क्योंकि हमारे पास जो हमारा डेटा टाइप था वेरिएबल्स का वो इंट था, इसलिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।